Tally, when a receipt note is tagged to a purchase entry, the whole transaction is completed. Receipt note voucher स्टोर पर गुड्स एंड आइटम्स के रिसिप्ट रिकॉर्ड करने के लिए यूज होता है. टैली में जब रिसिप्ट नोट टैग होता है इन परचेस एंट्री, द होल ट्रांजैक्शन इज कंप्लीटेड. नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. Rejection out plus F6. Rejection out voucher is used for purchase return. That is, purchase buyers, but they turn out to be defective. Tally Prime में rejection out voucher purchase return के लिए use होता है. That is, जो goods हमसे purchase हुए हैं, but they turned out to be defective. Next comes purchase bill. The key function is F9. The list of bills for which inventory transactions are completed but where the accounting transactions are pending are displayed in the purchase bill pending report. List of bills में जहाँ inventory transaction complete हुए हैं and accounting transaction pending है, तो वो purchase bills pending report में display होता है. The next comes debit note. This note will use for purchase returns. It is issued by a buyer to a seller debit and requesting for a credit note. Debit note purchase return के लिए use होता है and it is issued by a buyer to a seller debiting his account and requesting for credit note. Now we'll move to the next slide. Now here comes the following points that are used in sale order processing. The first is sales order and the key function is Alt plus F5. Sales order is an order placed by a customer for the specified goods and at a given price and at a predetermined time. Sale order customer के through place होता है for specific delivery of goods and at a given price and predetermined time. Next comes delivery note. The key function is Alt plus F8. Delivery note is a document that accompanies a shipment of goods and provides a list of the products and quantity of the goods included in the delivery. Delivery note एक document है which accompanies a shipment of goods and delivery note हमें list provide करता है of the quantity of goods and list of products included in the delivery. Moving to the next slide. Next point comes rejection in. The key function is Control plus F6. Rejection in voucher in Tally is used for sales return. That is, return of the goods sold but were defective. Tally Prime में rejection in voucher sales return के लिए use होता है. That is, return of the goods sold but were defective. Next comes sales bill. The key function is F8. A bill of sale is a document that transfers ownership of goods from one person to another. It is used in situations where the former owner transfers possession of the goods to new owner. Bill of sale एक document है जिसके थ्रू goods की ownership one person to another transfer होती है. Bill of sale ऐसे situations में use होता है जहां former owner possession of goods new owner को transfer करते हैं. Bill of sale may be used in a wide variety of transactions. We'll move to the next slide. Okay, ma'am, previous slide only. Okay, next point comes credit note. Credit note will use for sales return. It is issued by a buyer, by a seller to buyer in different situations, informing that his account is credited. Credit note sales return के लिए use होता है and it is issued by a seller to buyer in different situations by informing that
his account is credited. Now we'll move to the next slide. The final process comes, that is pre-close order. After order is raised, when the order can't be fulfilled, the cancellation can be either whole or partial. In Tally, you can pre-close order completely or partially as required by a click of a button. Tally Prime में आप orders pre-close कर सकते हैं completely or partially as required. So this was all about the theoretical part of purchase and sales order process in Tally Prime. So now it's time for the live demonstration. I request Mr. Sagar to proceed ahead for the live demonstration. Thank you. Yes, ma'am. Very nice presentation, Anna ma'am. Hello. Good evening, all of you. I am Sagar from Rajlakshmi Solution Private Limited. I am going to live demonstrations, purchase and sales order process in Tally Prime. Ma'am, my screen is visible? Yes, Sagar. So अब हम देखेंगे कि टैली प्राइम में प्रैक्टिकली परचेस प्रोसेस और सेल प्रोसेस कैसे होता है. तो सबसे पहले हम देखेंगे वाउचर में हमें सबसे पहले परचेस ऑर्डर रिसीप्ट नोट ये एक्टिवेट करना होता है. तो सबसे पहले हम जाएंगे अदर वाउचर्स में F10 में, यहाँ पर शो इनएक्टिव, देन परचेस ऑर्डर, यहाँ पर क्लिक करने के बाद ओपन हो जाता है. ऑलरेडी मैंने उसको ओपन करके रखा है, तो आपको जो भी वाउचर ओपन करना है तो यहाँ से आप कर सकते हो. अब हम देखेंगे कि फॉर एग्जांपल हमें 100 कंप्यूटर परचेस करने हैं, तो फर्स्ट हम उनको परचेस ऑर्डर दे देंगे. पहले हम परचेस ऑर्डर देंगे, एंटर. यहाँ पर ऑर्डर नंबर आता है, यहाँ पर हम ऑर्डर नंबर लेंगे, देन परचेस अकाउंट. हमें जो भी आइटम परचेस करना है ऑर्डर देना है उसका. कंप्यूटर हमें 100 क्वांटिटी परचेस करनी, ऑर्डर देना है. रेट, ये सेव करने. अभी हम इसका इफेक्ट देखेंगे. गेट ऑफ टैली, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, परचेस ऑर्डर आउटस्टैंडिंग में, ऑल्ट ऑर्डर. यहाँ पर हमने जो भी परचेस ऑर्डर किया है वो यहाँ पर आपको शो होता है, और इसका इफेक्ट बैलेंस शीट और कहीं भी नहीं होता है. अब हम देखेंगे नेक्स्ट रिसिप्ट नोट. अभी हमने जो परचेस ऑर्डर दिया था उसमें से हमें हमारे पास 50 कंप्यूटर रिसीव हो गए, तो हम उसका रिसिप्ट नोट लगाएंगे. यहाँ पर पार्टी लेंगे, रिसिप्ट नोट के लिए फंक्शन F9 शॉर्टकट की, रेफरेंस नंबर लेंगे यहाँ पर 01. यहाँ पर जो हमने परचेस ऑर्डर दिया था उसका ट्रैकिंग नंबर यहाँ पर हमें आ जाता है. यहाँ पर क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिक वो वहाँ पर पिकअप कर लेता है. कंपेयर टू हमारे पास सिर्फ 85 नंबर्स रिसीव हो गए, तो हमें 85 डालेंगे, एंटर, सेव. अभी इसका इफेक्ट देखेंगे हम गेट ऑफ टैली में, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट. अभी हमारे पास 50 आइटम रिसीव हो गए हैं, तो यह हमें दिखेगा स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, परचेस बिल पेंडिंग में. तो यहाँ पर हमारे 50 आइटम पेंडिंग में हमें शो हो रहा है, और ये बैलेंस शीट में भी हमें शो करता है करंट लायबिलिटीज में, परचेस बिल टू कम. देन हम देखेंगे रिजेक्शन आउट. जो हमने 50 नंबर कंप्यूटर से रिसीव किए थे उसमें से 10 डैमेज या खराब होते हैं, तो वो हम रिटर्न करते हैं.
तो उसके लिए हम करेंगे रिजेक्शन आउट, कंट्रोल F5, यहाँ पर पार्टी का नाम, जो आइटम देना है हमको, कंप्यूटर ट्रैकिंग नंबर, यहाँ पर 10 नंबर हमारे रिटर्न करने हैं, तो यहाँ पर डालेंगे हम। अभी ये भी हम यहाँ पर देख सकते हैं डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, परचेस ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, ऑल ऑर्डर। तो अभी हमारे पास बैलेंस 60 बचा है, मतलब बैलेंस है, तो हम यहाँ पर इसे प्री क्लोज भी कर सकते हैं। मतलब अभी हमें इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है 60 की, तो हम यहाँ से क्लोज कर सकते हैं ऑर्डर प्री क्लोज। तो यहाँ पर हम डालेंगे, अगर हमको 60 की 60 भी नहीं चाहिए तो हम डायरेक्ट वहाँ पर 60 डाल देंगे और इसका रीजन डालेंगे कि क्यों हम इसको विजिट कर रहे हैं, और इसको सेव कर देंगे। अभी हम परचेस की एंट्री करेंगे F9, अकाउंटिंग वाउचर F9, सप्लायर इनवॉइस नंबर, डेट, यहाँ पर पार्टी लेंगे परचेस विद ट्रैकिंग नंबर, यहाँ पर भी शो होता है जो रिसिप्ट नोट का हमने लगाया था, यहाँ पर 10 अमाउंट लेस, 10 नंबर लेस करके ये एंट्री हम सेव कर देते हैं। ट्रैकिंग नंबर, अभी इसका इफेक्ट देखेंगे हम। डिस्प्ले, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री बुक, स्टॉक आइटम, यहाँ पर इनवर्ड हमारे पास 40 से दिखा रहे हैं और इसका इफेक्ट हमें बैलेंस शीट में भी शो होता है। यहाँ पर अभी हमने परचेस किए हैं और उनमें से भी कुछ आइटम डैमेज या खराब है, तो उसके लिए हम डेबिट नोट मारेंगे, उसमें जाएंगे वाउचर्स में, डेबिट नोट के लिए अल्ट F5, डेबिट नोट, अकाउंट कंप्यूटर, हमारे पास 40 ही है, तो उसमें से फिर से 10 खराब हो गए, तो हम यहाँ पर डालेंगे 10, सेव कर देंगे। अभी हम स्टॉक समरी में अगर चेक करेंगे तो हमें 30 ही शो होगा। डिस्प्ले मोड रिपोर्ट, इन्वेंट्री बुक, स्टॉक आइटम, यहाँ पर 30, क्योंकि हमने रिजेक्ट कर दिए है डेबिट नोट एंट्री पास करके। अभी हम देखेंगे सेल्स ऑर्डर प्रोसेस कैसे होता है, उसके लिए जाएंगे वाउचर, सेल्स ऑर्डर के लिए कंट्रोल F8, पार्टी नेम लेंगे हम साहिब, या मोड टर्म्स ऑफ पेमेंट होता है, आप पेमेंट कैसे कर रहे हैं, कैश कर रहे हैं या फिर कैश करेंगे। अगर आपके पास अदर भी फैसिलिटी है जैसे चेक, RTS वगैरह, तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। टर्म्स ऑफ डिलीवरी, मतलब आपका डिलीवरी समय कितना होता है, वहाँ पर 3 डे डालेंगे हम। डिस्पैच थ्रू, आप किससे वो अपना जो प्रोडक्ट है वो बाय कर से
दे रहे हैं, तो हम यहाँ से वैन करेंगे, वैन में जा रहा है हमारा प्रोडक्ट, और डिस्टिनेशन कौन सा है, समझो मुंबई। जो हमारा प्रोडक्ट लेके जा रहा है उसका एजेंट का नाम यहाँ पर डालते हैं। अगर कुरियर से जा रहे हैं तो कुरियर का नंबर यहाँ पर डालते हैं, अपना व्हीकल नंबर, गाड़ी का नंबर उसका, देन एंट्री से। अभी ऑर्डर नंबर डालेंगे हम 1 सेल्स अकाउंट। अभी हम ये सेल कर ऑर्डर दे रहे हैं, मतलब कोटेशन भी है, इसको कह सकते हैं हम, कोटेशन परफॉर्मा। हम 10 सेल करते हैं, रेट लेंगे, और एंट्री से कर देंगे। अभी इसका सेम इफेक्ट वैसे दिखता है, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, ऑल ऑर्डर, यहाँ पर वो दिख जाएगा हमको उसका सेल्स ऑर्डर। अभी हमने सेल ऑर्डर दिया है, अब अभी डिलीवरी नोट देखेंगे कि हमारे पास कितने आइटम रिसीव हुए हैं, वो देखेंगे। समझो हमने 10 आइटम हमारे पास रिसीव हो गए, तो उसका शॉर्टकट क्या होता है, अल्ट F8 डिलीवरी नोट, पार्टी लेंगे, ट्रैकिंग नंबर आ जाता है सेल ऑर्डर का, लिस्ट, यहाँ पर ट्रैकिंग नंबर की वजह से ऑटोमेटिकली वो आइटम आ जाता है। हमारे पास डिलीवरी नोट टोटल 10 अमाउंट हो चुके हैं, तो हम ये लेंगे। इसका भी इफेक्ट हमें डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में मिलेगा। स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, सेल ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, स्टॉक आइटम, कंप्यूटर। अभी हम देखेंगे बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में इफेक्ट आ जाता है सेल्स अकाउंट, सेल बिल पेंडिंग में। अभी हम रिजेक्शन इन करेंगे, अकाउंटिंग हो चुकी। हमने जो डिलीवरी नोट दिया था, जो माल सप्लाई किया था, उसमें से कुछ प्रोडक्ट डैमेज होने की वजह से वो रिटर्न आते हैं, तो उसके हम रिजेक्शन इन की एंट्री करते हैं। उसका शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल F6, पार्टी लेंगे, आइटम 20, हमारे पास 5 आइटम रिजेक्ट हुए, वापस आ गए, एंड ऑफ लिस्ट। अभी हम स्टॉक समरी में देखेंगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, इन्वेंट्री बुक, और स्टॉक आइटम। यहाँ पर जितने भी लॉस होते हैं हमें इनवर्ड में पता चल जाता है, कितना इनवर्ड हुआ है, कितना आउटवर्ड हो गया है। अभी हम सेल की एंट्री करेंगे, अकाउंटिंग वाउचर, शॉर्टकट क्या होता है उसका, इफेक्ट, पार्टी, जो ट्रैकिंग नंबर था हमारा डिलीवरी नोट का, यू एज इट इज यहाँ पर आ जाता है। सेल्स अकाउंट, जो हमने 10 आइटम डिलीवर दिए थे, उसमें से 5 रिजेक्ट हो गए, 5 का ही हम सेल बिल बना रहे हैं। हमने सेल बिल बनाया है। इस सेल बिल बनाने के बाद फिर से वो इशू होता है कि कोई एक आइटम होता है डैमेज होता है, तो फिर से हमारे पास रिटर्न आता है, तो इसके लिए हम क्रेडिट नोट करते हैं। क्रेडिट नोट के लिए होता है शॉर्टकट की कंट्रोल F6,
सॉरी अल्ट शिफ्ट होता है। इसको चेंज मोड करेंगे यहाँ से, आइटम इनवॉइस, सेल्स पार्टी, यहाँ पर एक आइटम रिजेक्ट हो चुका है हमारा, तो वो ले लेंगे हम। सेव कर लेंगे। अभी हम देखेंगे रिपोर्ट में डिस्प्ले मोड रिपोर्ट, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंटरी बुक, स्टॉक आइटम। यहाँ पर हमारा जो भी इनफॉर्मेशन होता है, हमारे पास कितने आइटम इनवर्ड होगी, कितने आउटवर्ड हो गए और कितने क्लोजिंग में, तो सब हमें यहाँ पर शो हो जाता है। और बैलेंस शीट में भी हमें रिपोर्ट मिलता है। क्लोजिंग स्टॉक, स्टैंडर्ड डेटर्स। तो इस तरह से सेल परचेस और सेल प्रोसेस हम देखें। और हेलो, डन फ्रॉम माय साइड्स मैम। Okay. Thank you, Anam and Sagar, for your wonderful presentation. It was a nice knowledge sharing session. So now it's a time for overview of the today's session. So it's over to Mr. Bhagwati. Yeah, thank you, Anaga and team. And so myself is Bhagwati Dhandaria. Good evening, everyone. Myself is Bhagwati Dhandaria. So every week we are doing the new topics and according your demands. So today's session is about us how to manage your purchase and sales in the Tally Prime. So in the Tally Prime, you can manage complete order processing, purchase and sales order processing, complete delivery note and challan, and receipt note. And same way, we can also manage the order, sales and purchase and sales both. So ये सभी चीजों को how to track in the Tally, जिससे आपके जो benefits क्या हो सकते हैं, how you can manage the your reorder labels and in terms of the your customer inventory balance and according all the things you can manage in a single one stops. So यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं कि जो मेजरली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में स्टॉक इन्वेंट्री का मैनेजमेंट इज ऑलवेज टफ टू मैनेज द इन्वेंट्री, और उसको मैनेज करने के लिए देयर इज नॉट एनी स्टैंडर्ड मैकेनिज्म, बट एवरीबडी इज आर यूजिंग टैली, जहां पर ऑलरेडी ये फीचर इनकॉर्पोरेटेड है। बहुत से ऐसे कस्टमर है दे आर नॉट अवेयर कि इसको कैसे मैनेज किया जाता है। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने आज ये ऑर्डर सेल्स एंड ऑर्डर प्रोसेसिंग एंड सेल्स एंड परचेज एंड सेल्स कंप्लीट ट्रैकिंग सिस्टम पूरा का पूरा जो है हमने आज आपको दिखाने की ट्राई करी है। तो इससे बेनिफिट क्या हो जाते हैं कि आज की डेट में हमारे पास कोई एक कस्टमर आता है, डायरेक्टली हम उस कस्टमर्स को बिलिंग करते हैं और हमारा स्टॉक निकल जाता है। लेकिन हमें बहुत समय जब हम ये पूरा ट्रैक यूज नहीं करते तो दैट टाइम वी आर फेसिंग दिस इश्यूज कि आज की डेट में मेरे पास ऑर्डर कितने हैं और उन ऑर्डर को सप्लाई करने के लिए मेरे पास स्टॉक की पोजीशन क्या है, और अगर हमारे स्टॉक की पोजीशन कम है, फॉर एग्जांपल कोई एक आइटम हमारे पास 100 पीस का ऑर्डर है, मेरा स्टॉक 80 पीस है और मैंने 100 का ऑर्डर दिया हुआ है, तो करंट सिनारियो में आपको दिखाई देगा कि आपके पास 80 है यानी 20 पीस की रिक्वायरमेंट है। इस केस में कई बार कस्टमर एंड बिजनेसमैन क्या करता है, दे आर जस्ट पुट द रिपीटेड ऑर्डर टू योर वेंडर सप्लायर्स, जबकि ऑलरेडी 100 का ऑर्डर दिया हुआ था। तो इट मीन्स यहाँ कैलकुलेशन ये होना चाहिए कि 180 हमारे पास स्टॉक है, 100 इज इन द ऑर्डर प्रोसेसिंग अंडर द प्रोसेस एंड 80 इज इन आवर स्टॉक, 100 इज ऑर्डर्स। इट मीन्स हमें 80 पीसेस आज भी करंट स्टॉक में हमारा अवेलेबल है। एक बार मेरा स्टॉक लैंड हो जाएगा और सप्लाई हो जाएगी। ये जो चीजें हैं, जो इन्वेंट्री को मैनेज करने का जो तरीका है वो टैली में इतना इजी है और उसको आप ट्रैक भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक सेल्स ऑर्डर बनाया है तो आपको फिर से चालान बनाने के लिए रिपीटेड एंट्री करने की भी जरूरत नहीं है।
आपका ऑर्डर 100 का है, आपने 60 का चालान बनाया, फिर 20 का चालान बनाया, 10 का चालान बनाया, 10 इज पेंडिंग, ये सभी चीज आपको दिखाई देती है। अब मल्टीपल चालान के सामने आपने एक बिल बनाया, ये भी प्रैक्टिकल है, और मल्टीपल सेल्स ऑर्डर के सामने आपने एक चालान और एक इनवॉइस बनाया, दिस इज ऑल्सो प्रैक्टिकल। सेम वे इन द प्रोसेस आपने मल्टीपल ऑर्डर्स दिए हुए हैं वेंडर्स को, उसके सामने आपकी सप्लाई आ रही है जो पार्ट एंड पार्ट में आ रही है, तो यू कैन ऑल्सो ट्रैक दैट कि मेरे कौन से ऑर्डर के सामने कितना स्टॉक आ गया, मेरा कितना ऑर्डर पेंडिंग अभी सप्लायर के पास है। जो मेरा स्टॉक आ चुका है वो मेरे डिलीवरी चालान के थ्रू, रिसीट नोट के थ्रू आया हुआ है, और उसके सामने मेरे कितने इनवॉइस पेंडिंग है जो सप्लायर से आने बाकी है। जब तक हम इनवॉइस की एंट्री नहीं करेंगे तब तक हमारा कंप्लायंस यानी जीएसटी अपडेट नहीं होगा, इनपुट क्रेडिट हम नहीं ले पाएंगे। तो दिस ऑल दीज थिंग्स इज अ वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज मैनुअली, जहां पर आप टैली के थ्रू वेरी सिंपल आप मैनेज कर पाएंगे। पेंडिंग ऑर्डर के स्टेटस आप देख पाएंगे, पेंडिंग ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ द सप्लाई, इन टर्म्स ऑफ द कस्टमर्स, दोनों आप देख पाएंगे। पेंडिंग डिलीवरी चालान्स देख पाएंगे, एंड पेंडिंग इनवॉइस, सेल्स इनवॉइस कितने पेंडिंग है, परचेज इनवॉइस हमारे कितने आने पेंडिंग है, ये सभी चीज़ों को आप यहाँ ट्रैक कर पाएंगे, और इसके बेस पे आप रीऑर्डर प्रोसेस भी कर पाएंगे। इससे बेनिफिट ये हो जाता है कि आपकी मिस्टेक नहीं होती, जिससे आपका स्टॉक डंपिंग नहीं होता है। स्टॉक डंपिंग नहीं होता, बट नेचुरल आपका फंड फ्लो एक्यूरेट रहता है, उसमें आपका इन्वेस्टमेंट जो है, जो आपका कैश फ्लो एंड फंड फ्लो की मैं बात करूं, जो कई टाइम हमारे पास ओवर परचेज के कारण स्टक हो जाते हैं हम कई सिचुएशंस में, वो नहीं होता। इससे आप सप्लायर को भी टाइम पर पेमेंट दे पाते हैं, और आप अपने कस्टमर के साथ ट्रांसपेरेंसी रखते हैं, तो कस्टमर को भी सभी चीज़ों की क्लियरिटी दे पाते हैं, और उसके एडवांटेज आपको मिल सकते हैं, एंड कस्टमर विल ऑल्सो नॉट सफर। तो दिस इज ओवरऑल आइडिया ऑफ द परचेज एंड सेल्स ऑर्डर एंड परचेज एंड सेल्स ट्रैकिंग सिस्टम, जिसको आप यहाँ से यूटिलाइज कर सकते हैं टैली के थ्रू। और टैली प्राइम में इसके अलावा भी काफ़ी फीचर्स हैं जो आप उसको एक्सप्लोर करेंगे, हमारी टीम के साथ आप जब कनेक्ट करेंगे तो यू विल गेट द एडवांटेज। अगर आप इसको यूज करने में कोई भी चैलेंजेस आवे तो आपके पास हमारे जूम चैट में ऑलरेडी मैसेज डाला हुआ है, जहां पर आप डिस्कशन कर सकते हैं। उस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप राजलक्ष्मी में जिनके साथ ऑलरेडी कनेक्टेड हैं आप उनके साथ भी बात कर सकते हैं, जो आपको इसमें हेल्प करेंगे कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए आपके सिस्टम में, आपकी कंपनी में, और उसका एडवांटेज क्या है। आप सेपरेट डेमो देखना चाहते हैं, डेफिनेटली यू कैन ऑल्सो चेक द डेमो। आप यहाँ जो भी हमारे जो एवरी सैटरडे वी आर डूइंग द सेशंस एट द 4 o'clock इन द मल्टीपल टॉपिक्स अकॉर्डिंग योर डिमांड। तो आप ये टॉपिक्स जो आप देख रहे हैं, ये सभी टॉपिक्स हमारे रिकॉर्डेड होते हैं, और ये रिकॉर्डिंग आपकी हमारे यूट्यूब चैनल पर पब्लिश की जाती है। आप हमारा यूट्यूब चैनल अगर सब्सक्राइब कर लेते हैं, जो आपके जूम के चैट बॉक्स में लिंक है, आप अभी उसको क्लिक कर लेंगे तो आप इमीडिएट सब्सक्राइब कर पाएंगे। तो वहाँ पर मल्टीपल टाइप ऑफ द टॉपिक्स जो आपके बड़े काम के हैं, आप उनसे गो थ्रू होकर के अपने बिजनेस में उसका एडवांटेज ले पाएंगे, और जो सॉफ्टवेयर आप टैली प्राइम यूज कर रहे हैं उसका पूरा यूटिलाइजेशन अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ले पाएंगे, और आप अपने बिजनेस को स्मूथ रन कर पाएंगे। आप जो हमारा यूट्यूब चैनल है, ये कंप्लीट आज की डेट में एकेडमी चैनल हो गया है। आज टैली सीखने के लिए काफ़ी ऐसे कस्टमर्स ने फीडबैक दिया कि सर हमें टैली सीखने के लिए अब नहीं जाना होता, हमारे पास कोई भी कंपनी में एम्प्लॉई आता है तो हम जस्ट आपका यूट्यूब चैनल का लिंक उसको सब्सक्राइब करने को दे देते हैं, फिर वो एक टॉपिक को देख करके अपने आप सीख लेता है और हमारा बिजनेस स्मूथ रन कर पाते हैं। तो मैं आपको भी सबको एडवाइस करूंगा, यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, यू कैन गेट द बेनिफिट्स। तो दिस इज ओवरऑल आइडिया ऑफ द टैली प्राइम, sales and order processing and other all the topics related to all the features related to your requirements आप YouTube चैनल के थ्रू जा पाएंगे, देख पाएंगे। इसके अलावा भी राजलक्ष्मी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनके साथ हम काम कर रहे हैं। लाइक आपके पास हमारे पास CRM है, लाइक हमारे पास SAP बिजनेस वन है जो बड़ी ERP बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, मिड एंड बिग ऑर्गेनाइजेशन में काम आती है, जिसके लिए भी आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। टाइम टू टाइम हमारे टैली में
सर्विसेज में हम काफ़ी बेनिफिट्स आपको देते रहते हैं। जैसे आज की डेट में हमारा इस महीने में ऑटो बैकअप पर काफ़ी अच्छा फोकस है, काफ़ी अच्छा हमने ऑफर किया हुआ था, जिसमें काफ़ी कस्टमर्स ने उसका एडवांटेज लिए हैं, जो 31 को लास्ट है, यानी कल लास्ट डे है। तो यू कैन ऑल्सो गेट द एडवांटेज ऑफ द आवर ऑल ऑफर्स। इसके अलावा एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं हमारे। इसके अलावा हम टैली को आपके हिसाब से मोल्ड करके देते हैं, इनवॉइस कस्टमाइजेशन करके देते हैं, आपको किसी भी टाइप की रिपोर्ट्स वगैरह कस्टमाइज चाहिए होती है करके देते हैं, या आपको कोई दूसरे थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर इनके साथ इंटीग्रेट करना है वो करके देते हैं। इसके अलावा भी आपको टैली में आप टैली को ऑन क्लाउड होस्ट करके देते हैं, जिससे आप अपने टैली को अपने फिंगर टिप्स पर कहीं भी किसी भी लोकेशन से एक्सेस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जस्ट लाइक इन योर कंप्यूटर यू आर यूजिंग दैट टैली, सेम वे में आप टैली को क्लाउड के थ्रू यूज कर पाएंगे। तो ये सभी चीज़ों पर भी हमारे काफ़ी अट्रैक्टिव ऑफर होते हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव बेनिफिट्स होते हैं। तो आप इसको एक बार गो थ्रू होइए। आपको कोई भी रिक्वायरमेंट्स आती है, यू कैन ऑल्सो टच विथ योर अकाउंट मैनेजर, दे आर ऑलरेडी कम्युनिकेटिंग विथ यू इन द आवर ऑर्गेनाइजेशन, और उसके बेनिफिट आप जरूर लें। दिस इज ओवरऑल आइडियाज कि वी वांट टू डू स्मूथ योर बिजनेस, कि कैसे आप उसका बेनिफिट लें और कैसे आप अपने बिजनेस को स्मूथ कर पाएं। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। इस अंगा इज ओवर टू यू। हेलो Angha, I think you are mute. Your voice is not audible, Angha. Hello. Hello, I'm audible? Hello. Yeah, Angha, now you are audible, please. So can you please check whether there are any questions related to the session, sir? No, there is not any questions. I think अगर आपको कोई भी questions है, तो you can also ask any questions. So we are here for the answer. So Angha, I think there is not any questions. Okay. So we can wind up the session right now. Okay. So thank you so much all for joining this today's session. So now we'll wind up the session. Thank you, everyone. Thank you, everyone. See you soon in the next session. Thank you. Bye-bye.